Unfortunately, I couldn't get the front seat this time because I'm using public transport up to Baba Rishi. रुक जाओ. This is how the supply reaches up to interior villages. आपका नाम बता देंगे थोड़ा? मोहम्मद सुल्तान. आपका नाम है? Jayeda. अच्छा. Sonamarg to Gulmarg, the 3 hours journey was with lot of aesthetic beauties and hustle and bustle. Once we crossed Srinagar, we followed a lot of traffic. By the time we reached Gulmarg, it was late afternoon. So very good morning all my viewers and people who are watching my channel from different parts of the world. I must say that Gulmarg is a beautiful place. It's quite a place where people can do lot of things. I mean, it's actually located in the meadows and the infrastructure is good here. I mean, there are good properties here where you can spend some quiet time, and most importantly, this kind of place can offer you relaxation along with, I mean, exploration. There are many places to explore. So I'm just now going to Tanmarg, which is a village approximately 15 kilometers from Gulmarg. So I'll be using this local sumo taxi. So right now I'm traveling with the locals here, and it's almost half an hour journey. Probably I'll go to Baba Rishi and I'll cover some villages over there. It's actually on the way from Gulmarg to Baramulla. This village is falls in between, and just wanted to show you a little bit of in-depth analysis about the local life and the way of living. My motto is to show you the village life. Village life is something that we miss out when we travel to this kind of places. So let's see. Next fine morning when I was leaving Gulmarg, I didn't expect it to meet Sultanji as a new friend. He showed the amazing piece of hospitality by inviting me to his house as a guest. मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है. मोहम्मद जी. अच्छा, और वही कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हो? अच्छा. तो यहाँ से कितना किलोमीटर होगा ये बाबा ऋषि? 7 किलोमीटर. 7 किलोमीटर. रुक जाओ. सर जी ये बराबर है. हाँ, सामान भरना है. यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं ना, फिर टाइम लग जाएगा ना, थोड़ा मैनेज कर लेना थोड़ा भाई. ठीक है, थैंक यू. मेरा दिन का टाइम चला जाएगा. So I got this back seat right now and I'm heading towards Baba Rishi with the locals here. This is how the supply reaches up to interior villages. आपका नाम बता देंगे थोड़ा? मोहम्मद सुल्तान. अच्छा, कब गए थे आप कलकत्ता? 99. वाह. दिसंबर में था कलकत्ता में. मतलब आपका हो गया 22 साल हो गया. हमारा था इंडो अमेरिकन एक्सप्लोरेशन. अच्छा, रिवर एक्सप्लोरेशन. फिर कहाँ तक गए थे कलकत्ता में? हम गंगा, जहाँ से गंगा निकलता है ना, वहाँ से शुरू किया था गंगा सागर तक. अच्छा. मतलब पूरा एकदम गौमुख से गंगा सागर. हाँ. आओ. हम बाई बोट गए था. बाई बोट. हाउ वाज इट? मैंने आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ? बहुत सही. हमारा तो एक ट्रैवल के साथ काम कर रहा है, मरकरी हमारा एक्सप्लोरेशन के साथ काम कर रहा है. अच्छा.
तो हमारा टूर था, हम तो 4 बार गए एक्सप्रेशन लेकर। अच्छा अच्छा, अभी आप क्या करते हो? अभी छुट्टी करके घर में बैठा। घर में बैठा रिटायरमेंट। अब तो ट्रैकिंग करने का उतना नहीं है ना, अब तो बुढ़ा हो गया। अच्छा, अब 17,000 से ऊपर नहीं जा सकता, 18,000 से ऊपर नहीं जा सकता। नहीं जा सकते ना, हाँ बिल्कुल। मैं 18,500 से ऊपर गया। 18,500। ये गांव का नाम क्या है सर? ये चुंटी पत्थर, बाबर सिंह चुंटी पत्थरी। जूटी पत्थर। चुंटी पत्थर। जूटी पत्थर। So we are here in Juti Patthar village, and I'm going to show you a local village which is close to the Shireen, and you can see the houses here. Wow, it's quite beautiful, these houses. This is corns. They are drying up the corns here, and this is some herbs. I'm not sure the name. इसको क्या बोलते हो सर? इसको? ये मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, कलर की। ये मोवल है, मोवल फूल है ये। मोवा फूल। हाँ, इसको क्या करते हो आप लोग? ये बाजवन में लगता है कलर के। बाजवान के लिए। बाजवान। कलर डालते हैं ना, हम हाँ। कलर नहीं डालते, हम इसका तरी डालते ओ, नेचुरल कलर है। इसका क्या नाम है फूल का? हैं। कोमल कोमल कोमल। अच्छा, कोमल फूल कोमल। okay, so this is basically a flower called komal in local language, and this is, they use it for a special dish called bajwan. You can see they don't use artificial color, so this color they use for the preparation of the dish. इधर से सर? इधर से ओके। हेलो हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? नादी। नादी जान। नादी, ये आपकी नाती? पोती पोती है। हाँ, पोती है। वाह, और आपका नाम मैम? हसीना। दब दिया था तो रुपया दूंगा। ये बुखारी है ना? हाँ, ये बुखारी है। हाँ बुखारी। आपका नाम मैम? जयदा। जयदा। अच्छा, कितना बर्फ गिर जाता है यहाँ पे आपका? 5 फुट 6 फुट। वाह, फिर आप लोग मतलब घर के अंदर ही कैद हो जाते हो ना उस टाइम? नहीं। फिर क्या करते हो? बर्फ का पूरा उठता है ना यहाँ तक बर्फ। अच्छा, रोड साफ होता है। रोड साफ होता है। गाड़ी सर्विस बराबर होता तो ये आर्मी वाले करते हैं, आप ही लोग कर लेते हो? नहीं, हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो करता है। गवर्नमेंट का मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, अच्छा अच्छा, आर्मी नहीं करता है। आर्मी नहीं करता है। ये ऊपर क्या है सर? ऊपर ऊपर भी घर है। घर है? रूम है। थोड़ा जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल थैंक यू जा सकते थैंक यू। आजा पहले चाय पी लो। हाँ बस 2 मिनट सर। So this is a typical house, you know, that you can see. I mean, this is kind of balcony we have here. सर जी, ये मिट्टी का क्या बना के रखे हो सर? कहाँ से? ये जो पॉट ये पॉट। वो जैसे आपका तबला होता है ना। हाँ, ये वही तबला है। तबला। ये खरीद के लाया है। अच्छा, खरीद के लाए हो। एक इसको कैसे यूज करते हैं? बजाने के लिए? ये है ना जो शादी में बजाएगा ना, ये लोग ये। ओह, ये अभी नरम हो गया ना। इसको क्या होता है? तबला, लोकल तबला। हाँ, लोकल तबला है। अरे ये स्किन क्या है इसका? ये जो चमड़ा लगाता है ना वो। ओह अच्छा अच्छा। जैसे उसमें होता है डोल में बाहर। डोल में, हाँ। ये वही है। शादी के लिए? ये शादी के लिए। मतलब आपके बेटी की शादी के लिए आएगी? हाँ। हाँ, वाह। अब आप लोग ले आओगे, वो बजाएंगे फिर? नहीं, जो हमारा औरत लोग होते हैं ना। ओह अच्छा। हमारा औरत लोगों का गाना बहुत सही होता है। अच्छा। हाँ, जी। जैसे तकरीबन 200-300 औरत होगा हमारा गांव का इधर। हाँ। वो खुद नाचेगा, खुद गाएगा। खुद नाचेगा, खुद हाँ। गाएगा। वाह। उनका वो नहीं है, उन्होंने बोला हमारे पास सब लाएगा, तो मैंने थोड़ा बहुत ला के रखा। अच्छा, ये सर आपको लकड़ी और घास रखने के लिए आप यूज करते हैं ना? इसको क्या ये बोलते हो? गौशाला है। गौशाला ना, जैसे गौशाला। हमारे बंगाल में भी होते हैं। हाँ, जैसे आपका बंगाल में होता है, गढ़वाल में है, ज्यादा गढ़वाल में होता है ना गौशाला। ज्यादा गढ़वाल में। हाँ। ये बहुत पुराना होगा ना आपका? ये तकरीबन 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना। 20-25 साल पुराना। अच्छा। ये तो हो गया 20-22 साल, तो इसको हो गया जिस घर में वो खड़ा है। हाँ, हमारा जो बहुत सब्जी पालते हैं सब वो सामने सब्जी काटना है, जो मर्जी निकालो, साग निकालना है, धनिया निकालना है। यहाँ पे नीचे ना? हाँ, वो सामने हाँ। साहब है ना, हम चाय ऐसे नहीं, जैसे हमारा अच्छा। कपड़ा चाय के लिए कपड़ा होता चाय के लिए कपड़ा होता है। अच्छा है। हाँ, और उसके वो बिछा के तब चाय देते हैं। अच्छा।
कि हमारा जो धर्म है ना, हाँ, हाँ। ये बहुत मुश्किल है, कठिन प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें बहुत सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप भी बैठिए सर। मैं 2 मिनट में मैं वो बेटे का नंबर दूंगा ना आपको, अच्छा, जो बिल्कुल रनिंग में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चाय के लिए। थैंक यू थैंक यू। The customary tea here. I mean, they are so lovely people here. They offer tea and biscuits. I mean, it's quite an amazing moment for me. I mean, it's quite amazing. Very refreshing and amazing. I mean, she made this tea and so I mean, it's quite an experience, I must say. Overall, having tea at local house close to Gulmarg. हमारे साथ था अमेरिका में एक ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप। अच्छा। जब मनाली पहुंचा, मनाली पहले हम जब पहुंचा तो बिल्कुल ब्लैक था हम लोग। जब सुबह नहाया तो हम आपस में पहचाने आया हम उस होटल में था क्या चाय। तो मेरा एक दोस्त था, फ्लोरिन उसका नाम था। फ्लोरिन। हाँ, अंग्रेज था वो। उसने बोला सुना अब हम सब चेंज हो गए, चलो घूमने जाए। बहुत अच्छा, वो लीड मेरे को बार बार याद आता है। हाँ, मेरा दोस्त तो है अमेरिका में है, एडविन है, बहुत सारे है, ऑस्ट्रेलियन है, जापानीज है। तो ये लोगों के साथ हम भी वैसे आपके जैसे ही घूमते रहते हैं बंजारा टाइप लाइफ जब मौका मिले। हमारा तो वही नंदा देवी उस सर्किट में ज़्यादा करते हैं। नंदा देवी, पंचाचूली, सुंदर डूंगा, वो भी अच्छा है। हाँ, सुंदर डूंगा हो गया, उधर पिंडारी हो गया, बस यही चारों ज़्यादातर वही कवर करते हैं। छोटा ट्रैक है ना, छोटा ट्रैक भी अच्छा भी है। अच्छा है, सुंदर है, थोड़ा सा ये आपको पानी अच्छा है और लोग अच्छा है, माउंटेन भी दिख जाता है, थोड़ा माउंटेन भी दिख जाता है सामने। सुंदर डूंगा जब ऊपर जाता है तो कितना अच्छा नजर आता है। मैं बेलूनी टॉप तक गया था। बेलूनी टॉप में मैं फंस गया था एक बार। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं मतलब आपके गांव में? हमारा गांव जो है ये 22 का चूल्हा है। 22 चूल्हा। हाँ, इसमें तकरीबन 200-300 लोग हैं। 200-300 लोग हैं। अच्छा। बट हमके ये है क्योंकि अपना अपना काम अपना ये नहीं है क्योंकि आप क्या करता है मैं क्या करता नहीं है। नहीं। हाँ, अगर कुछ मुश्किल होगा तो सब इकट्ठे होगा। सब इकट्ठे होगा। सब इकट्ठे। ये यूनिटी है मतलब लोगों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, यूनिटी। जैसे मेरा शादी है, अभी मैं ये सामान ला रहा है, अगर वो जैसे मेरा भाई लोगों को पता लगा इसने लाया खुद उठा के, सब नाराज हो जाएगा आपने क्यों उठाया। अच्छा। अब मैं अपना फैमिली में सबसे बड़ा है, हाँ। अपना पूरा रिश्ता में सबसे बड़ा मैं है। अच्छा। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। हाँ, तो उसके बाद ये मेरे को उतना काम करने नहीं देता है। हाँ, अभी तो आप रिटायरमेंट एज में हो गए। इतने साल आपने घूमा फिरा तो काफी जानकारी भी मिला होगा आपकी फैमिली को ना, बहुत सारे जगह। बहुत क्योंकि मैं अपना बच्चों को बोलता है आप टूरिस्ट के साथ काम कर रहे हैं मत टूरिस्ट को कभी बुरा मत बोलो। हाँ। और टूरिस्ट से हेल्प ले लो, टूरिस्ट को सिखा दो। हाँ, लोकल चीज, लोकल खाना, लोकल सब कुछ मतलब। ये आपका लौकी, धनिया, इसको सर क्या बोले थे? चकुंदर बोलते हैं। बीटरूट। हाँ, बीटरूट यस, हिंदी में चकुंदर। गोभी भी अच्छा है आपका, आ रहा है ना, पत्ता गोभी। फूल गोभी का सीजन खत्म हो गया। फूल गोभी का खत्म ना। अच्छा। ये मिर्ची का पेड़ है। हाँ। ये कश्मीरी साग है जो इसको हम पिकल बनाते हैं सर्दी में। कौन सा वाला? ये वाला? इसको क्या बोलते हैं? कश्मीरी साग है ना, कश्मीरी साग। क्रम बोलते हैं। क्रम। अच्छा, इसका ये नया है। अच्छा, इसका ऊल आ जाएगा कब तक? बस ये 1-1.5 महीने। 1-1.5 महीने में आ जाएगा ना। So very good afternoon everyone. I'm here with a very pro person for skiing. He has his own business in Gulmarg and I'm very lucky that I'm here with him at his house. So let's just have a discussion with him, what kind of experience he have and how he, train people for skiing. Because this concept in India itself is a very new concept, till date. So let's talk to him, once. तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने शुरू कैसे किया स्कीइंग का? तो फर्स्ट टाइम मैं
करीब 6-7 साल का था जब मैं फर्स्ट टाइम गुलमर्ग गया था। जी, क्योंकि जी। स्कूल जाने का टाइम, ट्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो हम्म। 6-7 साल का था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था। अच्छा। तो मैंने 2 दिन स्की की और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर मैं 1 हफ्ते के लिए गया, अच्छा। क्योंकि स्कूल भी जाना पड़ता था, हाँ, तो हाँ। इस वजह से टाइम ज़्यादा नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो धीरे धीरे दिन बढ़ते गए और अच्छा। स्कीइंग में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। तो फिर अच्छा। मैंने 2-3 कोर्स किए। मेरा एक ट्रेनर था, बिल अच्छा। बार्कर, वो हम्म। यहाँ का नहीं था, फॉरेन का, यूएस का है वो ओके, शायद। बिल तो बार्कर। उसने मुझे 10-15 दिन थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। अच्छा। तो उसके बाद मैं चला गया फेज़ 1 पे ओके। अकेले। ओके। तो वहाँ से देखा कि मतलब इंटरेस्टिंग क्या है। तो उस टाइम वहाँ रेस चल रहा था, फर्स्ट की सेकंड इवेंट हुआ था उस टाइम, रेसिंग स्की का कुछ नेशनल चैंपियनशिप थी शायद उस टाइम। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जो है फेज़ 1 और चेयर लिफ्ट से स्की की थी। तब से लेके रेगुलर मैं टूरिस्ट का काम भी कर रहा हूँ और ये भी स्की अच्छा का, अच्छा 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 और खुद के लिए इम्प्रूव करता हूँ, अच्छा। दूसरों के को सिखाता भी, और जितने भी मतलब दोस्त आते हैं उनको भी फ्री में कभी कभार सिखाना पड़ता है। हमारे भी काफ़ी सारे दोस्त होते हैं ऐसे जो यहाँ आते हैं या हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनको सिखाना पड़ता है। अच्छा। या बाहर से काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं अच्छा। जिनको सिखाने के लिए हमें दिन निकालना पड़ता है। उनको समझाना पड़ता है कि इसकी क्या है, बिल्कुल। किन मेटल से बनी है, किस बिल्कुल। चीज़ से है, कौन सी जगह को क्या कहते हैं, ये सब बताना पड़ता है। जी 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 जी। तो इसके लिए माइंड फ्रेश होना चाहिए। बहुत जिस बंदे का माइंड फ्रेश होगा तो वो स्की डेफिनेटली सीखेगा। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि इसमें कोई बोले कि मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है। गवर्नमेंट रेट क्या है? गवर्नमेंट रेट 2500 है एक पर्सन का स्की का, पूरे दिन का। पूरा दिन का? हाँ, अच्छा। बेसिक में। अच्छा। तो माउंटेन के लिए तो रेट एक्स्ट्रा होता ही एक्स्ट्रा है। होता है तो जी। माउंटेन में नॉर्मली लोग नहीं जाते, प्रोफेशनल जाते हैं। प्रोफेशनल जाते हैं तो बिगिनर्स के लिए 2500-3000 पर डे का रेट हाँ, है। पर डे का रेट होता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बगैर उनको स्की दी जाती है, जो उनका इक्विपमेंट होता है। फुल इक्विपमेंट का 1000 रेट हो जाता है प्राइवेट में अच्छी स्की लेने का। नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि हमें 15 मिनट 20 मिनट करना, उनके साथ तो अलग ही लोग होते हैं, वो अलग ही उनको सिखाते हैं 15-20 मिनट, मतलब जो नॉर्मल एंजॉय करने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका एक्सपीरियंस में अगर आप कुछ इंसिडेंट बता पाए कि मतलब सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कब हुआ था, कैसे हुआ था? बस बताइए। मेरा पहला तो मैंने बता दिया है कि मैंने पहली बार रेसिंग देखी थी, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा भी था। तो उस टाइम जब पहली बार रेस देखी तो मेरे मन में जो ऐसा हुआ कि शायद मैं भी कर पाऊँ। तो मैं फर्स्ट टाइम चेयर पे चढ़ा था, अच्छा। कि पता नहीं था उतरना कैसे, चढ़ना कैसे। तो 2 बार गिरा भी चेयर पे। अच्छा अच्छा तो एक हाथ पे लगा था, वैसे ही मैं चला गया और 2 रन करके आया। अच्छा। तो जब पेन थोड़ा हाथ पे होने लगा तो वापस घर चला आया। तो 2 दिन रेस्ट करके तीसरे दिन फिर वापस चला गया। ओके तो ओके। तब से लेकर अब तक कोई भी जगह हो, कोई भी माउंटेन हो, गुलमर्ग का कोई भी रिज हो, वापस नहीं आता हूँ। वाह। फिरोजन लेक के बाद एक शॉर्न पिक नाम का एक माउंटेन है, वहाँ जाता हूँ। अच्छा, फिरोजा कितना दूर है गुलमर्ग से? गुलमर्ग से माउंटेन से चढ़ के काफ़ी दूर है। अच्छा। एक दिन लगता है, एक दिन में 1 रन होता है। अच्छा, लेकिन उनके लिए खाली प्रोफेशनल चाहिए। प्रोफेशनल beginners वाले। ये मत सोचो कि हम लोग लड़के हैं या लड़की है या बच्चे हैं, ये मत सोचो आप कि हम नहीं कर पाएंगे। आप आओ, देखो, पहले शूज़ पहनो, शूज़ पहन के एक दिन ट्राई करो। जब नहीं कर पाओगे तब बोलो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे देख के मत बोलो कि नहीं, ईजी नहीं है। बिल्कुल। फिर बाय बाय करते हैं थोड़ा सा। बाय, थैंक यू वेरी मच। बाय जी। I'm not sure when I'll come again, but my heart and mind will be here forever. The so kind-hearted people here, I mean, it's unbelievable for me. And I request you to all of you, at least you try to visit one village when you come to any hills or any remote places, because it's very important, to have a look at their life as well. Thank you for watching my channel. I mean, please subscribe for more interesting videos. हेलो। हाँ, मैं इनके घर में आया था ना, सुल्तान जी के। आपसे थोड़ा बात करना था। As you can see, this is the place where they prepare food for people who wants to have a meal here.